In this chapter, we are going to study about how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health. Since we have studied the chapter Principle and Process of Biotechnology, we are now aware with the fact that basically biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals by usage of genetically modified organism like plants, fungi, and animals, etc. So in today's time, we apply the knowledge of biotechnology in various fields like therapeutics, various diagnostic techniques, genetically modified crop production for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. These are few fields where I am just telling you that we can use this biotechnological things. And now we will discuss various areas of research in biotechnology which is given in your book also. Here, if I just increase this, you can easily see there are 3 points given here, and these are the research areas, latest research areas. तो इन लेटेस्ट रिसर्च एरियाज़ में ये जो फील्ड है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, let's discuss with that. That first thing is providing the best catalyst in the form of improved organism using a microbes or a pure enzyme. Second is creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. And third one is downstream processing technologies to purify the protein organic compound. That means कि whenever you apply this technique, so there are certain things which just we have to keep these things in mind, that we need a enzyme which can act in a suitable temperature without losing its property, and it should be efficient also in their working. तो वो एक हमारे पास चैलेंज है. तो वी हैव टू प्रिपेयर दैट बेस्ट कैटलिस्ट, सो दैट वो बेस्ट कैटलिस्ट जब भी हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं या जब भी हम कोई इस तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क कर सके. एंड ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन ऑल्सो, क्योंकि अगर कंडीशंस प्रॉपर नहीं होंगे एंजाइम विल नॉट गोइंग टू वर्क. तो एंजाइम्स और कैटलिस्ट उनके लिए एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना भी एक चैलेंज है. एंड ऑल्सो द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस, यू हैव ऑल्सो स्टडीज दैट डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मीन्स कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट you have to purify them and you have to just make them for the human consumption, उस तरह से उनको बनाना. तो हमने वो चीज़ें पढ़ी थी कि we have to purify them and we have to just make them fit for consumption of human beings or for other purposes where we are going to use. So it should be very you can say in the shape of very nice quality. तो वो सब चीज़ों के लिए भी हमें ये जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप करनी है. एंड ह्यूमन बींग्स, एज वी ऑल नो दैट बाय यूज़ ऑफ एग्रो केमिकल्स, no doubt we can increase the yield of various crops, but in developing countries like us, we all know that these fertilizers and pesticides are so costly that it cannot be possible for every farmer that they can afford it. So this is the basic problem in our country. So here is another adding, that is biotechnological application in agriculture, that how you can use this biotechnological things into the agriculture. So we know that in our country basically we know that our agriculture method is based on the fertilizers, pesticide. So that kind of thing is known as agrochemical based agriculture. तो अभी agrochemical based agriculture है जहाँ पर हम fertilizers, pesticide जितना चाहें उतना हम use करते हैं. Second thing is that organic agriculture. In some parts of our country we are also started doing organic agriculture, and in organic agriculture we just abstain from these chemical things like pesticides and fertilizers. ये सब हम यूज़ नहीं करते उसमें. एंड थर्ड इज़ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप एग्रीकल्चर वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट फर्स्ट थिंग इज़ दैट दीज आर द थ्री थिंग्स जिसके थ्रू हम सोचते हैं कि वी कैन इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. आइदर वी कैन इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के बेसिस पर हम इंक्रीज कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट यूज़ ऑफ बायो जो केमिकल्स हैं
तो उससे एग्रीकल्चर का हमारा ईल्ड तो बढ़ता है, बट इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अदर पुअर कंट्रीज वेयर द कॉस्ट इज सो हाई ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड दैट द फार्मर्स कैनॉट अफोर्ड इट, तो वहाँ पर क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना इज़ अ रियली चैलेंज. तो नॉट ओनली दिस दैट दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर वेरी कॉस्टली and farmers cannot afford this, but moreover it is not possible to increase the crop yield more than a certain limit with existing varieties. तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो varieties हैं उनकी ईल्ड ही नहीं है उतनी, तो हम कितना भी उसमें फर्टिलाइजर्स या कुछ भी हम उसमें डाल दें, एक लिमिट के बाद वो जो वैरायटीज़ हैं हमारी, दे आर नॉट एबल टू गिव यू दैट मच ऑफ प्रोडक्शन. तो दैट मीन्स वो सीड में ही प्रॉब्लम है कि अगर वो जितनी क्रॉप दे सकती है उसके बियॉन्ड लिमिट आप तो उससे ले नहीं सकते, इवन दो यू आर गिविंग द लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड ऑल द रिक्वायर्ड थिंग, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब भी देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. एंड यू हैव हर्ड द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर यू studied that green by the help of green revolution we increase our food production magically, है ना. तो बहुत सारा फूड प्रोडक्शन जो है वो हमने पिछले ईयर्स में किया है, लेकिन बट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन दीज कंडीशन due to the varieties also, due to the also environmental problem also. तो in order to minimize the usage of chemical and fertilizers in the crop field so that the harmful effects on humans and environment can be reduced. तो उसके लिए केवल एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हाउ यू वी कैन डू ऑल दिस, कि हम इन्वायरमेंट को भी सेव कर लें और हार्मफुल इफेक्ट जो ह्यूमंस की हेल्थ पर लाता है उससे भी हम बच जाएं. तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करना. तो इट इज़ द ओनली सोल्यूशन दैट we use genetically modified crops. So what are these genetically modified crop? Basically genetically modified crop means you improve that crops with the help of alteration in their gene. आप उनके जीन को ऑल्टर करके उन क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स समटाइम्स यू कैन एड सपोज दिस इज़ द प्लांट, तो प्लांट का एंड दिस इज़ द एनिमल, तो यू कैन इनकॉर्पोरेट द जीन ऑफ एनिमल इनटू प्लांट. समटाइम यू कैन इनकॉर्पोरेट द जीन ऑफ प्लांट इनटू द एनिमल. You can modify the gene and insert in the plants where you need certain kind of results. तो ये सारे काम करने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड. दैट मीन्स यू इम्प्रूव दैट वैरायटी जेनेटिकली. एंड जेनेटिकली आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? बाई ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए. तो उस डीएनए को आप इंसर्ट करो बाहर से किसी ऑर्गेनिजम्स का लाके, या उसका ही डीएनए जो है वो लेकर के आप उसको किसी भी तरीके से उसमें वेरिएशंस लाते हैं. दे ऑल कम्स इनटू दिस कैटेगरी. तो वेरियस प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, इनका जो जीन है दे हैव बीन ऑल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो ऑलरेडी ये सब किया जा चुका है, मतलब ट्रायल्स चल रहे हैं अभी इन चीज़ों के. तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम क्यों करते हैं? व्हाट आर द यूजेज ऑफ इस, और यू कैन से व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द. क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं तो प्लांट्स में, एनिमल्स में रिसर्च, तो दैट इज़ फॉर दैट मीन्स कुछ हमें यूजफुल या बेनिफिट उससे मिले. तो व्हाट आर द वेज बेनिफिट्स विच यू आर getting by the genetically modified crops, and these are listed here. That first is the you can get the crops which are more tolerant to abiotic stress. That means these crop can tolerate cold, drought, salt water हो, suppose ये soil में salt है या heat है बहुत ज़्यादा, these crops can tolerate all these things. तो वो tolerant होती हैं, they are more tolerant than the normal crop. And also they reduce the dependence of chemical pesticides. That means कि वो pest resistant खुद ही होती हैं, because you have inserted the gene which prevent them from pest. तो उनको केमिकल नहीं देने पड़ते आपको बाहर से, तो आपकी सॉइल जो है वो सेव हो जाती है पेस्टिसाइड से. एंड ऑल्सो दे रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. समटाइम्स जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत लॉस होता है जो किसान है उनका उनको क्रॉप्स को कट करने में. कई बार उनके ग्रेन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं ब्रेक में, तो वो लॉस भी कम होता है. एंड ऑल्सो दे कैन एफिशिएंटली यूज़ द मिनिमम, जो आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी है इनकी वो इंक्रीज़ हो जाती है मिनरल यूजेज की. सपोज देयर आर सर्टेन फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स प्रेजेंट इनटू द soil, or sometimes you give from the outside, so they can easily absorb them and completely absorb them. तो दिस प्रिवेंट्स द एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो क्योंकि उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, अगर थोड़ा सा भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, वॉट एवर दे रिक्वायर्ड इज प्रेजेंट इन टू द सॉइल, दे कैन यूज़ देम प्रॉपरली. तो आपको बाहर से नहीं देना पड़ता उनको,
अदरवाइज़ अगर वो नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर एफिशिएंसी उनकी नहीं है, थोड़ा सा इस न्यूट्रिएंट है सॉइल में एंड दे आर अनेबल टू यूज़ इट, तो आपको फिर बाहर से देना पड़ता है उनको। तो ये अननेसेसरी हो गए ना कि आप अगर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या सल्फर या वॉट एवर, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी है वो सॉइल में है, बट इवन दो योर प्लांट इज़ नॉट एबल टू टेक देम प्रॉपरली, तो आपको फिर एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि भाई इसको कुछ मिल जाए। तो आप बिना मतलब के लिए जो है वो सॉइल को लोड कर रहे हो अनवांटेड फर्टिलाइज़र से या अनवांटेड केमिकल से, तो वो चीज़ नहीं होती है। देन इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मीन्स यू जस्ट पुट द जीन ऑफ योर इंटरेस्ट इनटू द क्रॉप, तो आपको क्रॉप भी वही मिलेगी जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इज़ अ गोल्डन राइस विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ गोल्डन राइस, दिस राइस इज़ रिच इन विटामिन ए, तो ये विटामिन ए है। अदरवाइज राइस में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं है, विटामिन तो कोई होते नहीं है, बट यू जस्ट पुट द जीन ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए प्रोड्यूस करे ऐसा जीन आपने उसके अंदर डाला हुआ है, तो दैट्स वाई दिस गोल्डन राइस गिव्स द विटामिन ए रिच राइस आपको मिलता है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द जीन, विच काइंड ऑफ जीन यू हैव इंसर्टेड इन टू द प्लांट। सो देयर इज़ वन मोर application of biotechnology in agriculture is that pest resistance in plants. So how you can produce this kind of इफ़ेक्ट इनटू द प्लांट्स कि वो प्लांट्स में आपको पेस्टिसाइड ना देना पड़े, वो प्लांट जब आप ग्रो करो तो अपने आप से वो पेस्ट रेजिस्टेंट हों, ऐसा कैसे आप कर सकते हो। तो देयर इज़ अ फेमस एग्जाम्पल एंड वेरी गुड एग्जाम्पल इन योर बुक विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, that there is a bacterium known as Bt, if it is given here also, so you can see it here, Bt, Bacillus thuringiensis is the name, we can write it like this, Bt for short form. So Bacillus thuringiensis is the bacterium, and this bacterium Bt, it has a gene, toxin gene, it has a toxin gene in it, and we clone this. Suppose this is the bacteria, Bt bacteria, it has a toxin gene, this toxin gene produce a toxin protein, and this toxin proteins kills the insects, ये इनको किल कर देता है। तो हमने क्या किया कि ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको हमने क्लोन कर लिया, वी क्लोन इट, एंड क्लोन करके वी इंसर्टेड इनटू आवर प्लांट, किसी भी प्लांट में जिसमें भी हम डालना चाह रहे हैं उसमें हमने इस जीन को इंसर्ट कर दिया, द जीन विच प्रोड्यूसेस द बीटी टॉक्सिन। और अब जब कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट्स में आएंगे इनको खाने के लिए, तो क्या होगा कि बीटी टॉक्सिन जीन, क्योंकि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो ये जैसे ही इस प्लांट को आएंगे खाने के लिए ये क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द टॉक्सिन प्रेजेंट इनटू द प्लांट ऑलरेडी। तो दैट मीन्स यू हैव ट्रांसफर्ड द जीन फ्रॉम बैक्टीरियम टू द प्लांट, ठीक है ना। तो आपने बैक्टीरियम के जीन को कहाँ ट्रांसफ़र किया है, प्लांट में ट्रांसफ़र किया है, और वो जीन कौन सा था, विच प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन प्रोटीन। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल ऑल्सो। अब आप शॉर्ट में समझ गए कि देयर इज़ अ बैक्टीरियम known as Bacillus thuringiensis, in short I am calling it Bt. तो Bt produces the toxin gene, Bt toxin gene. We cloned this gene from the bacterium and we express them, or you can say we insert them into plant, so that the plant expressed this in the form of toxin protein, and it gives the resistance to insect without the need of insecticides, and in effect created a biopesticide. तो इस तरह की चीज़ हम एग्जांपल्स ना किन प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वी नाउ फॉर्म द, ऑलरेडी हम ये बना चुके हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न एंड बीटी राइस एंड बीटी टोमेटो, तो ये सब ऑलरेडी बन चुके हैं। पोटैटो ऑल्सो, तो पोटैटो भी हम बना चुके हैं, तो बीटी पोटैटो ऑल्सो, तो ये सब बन चुके हैं। दैट मीन्स सोयाबीन ऑल्सो, सोयाबीन, इन सब में हम ऑलरेडी ये जो बेसिलस thuringiensis का जीन था वो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी। सो हाउ इट वर्क्स, बीटी टॉक्सिन के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये काम करता है। बीटी, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटी कॉटन, कॉटन आप जानते हैं कपास जिससे कॉटन बनता है। तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस thuringiensis, एज आई टोल्ड यू दैट स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस thuringiensis, इफ आई रिमूव द इंक सो दैट इन डिटेल वी कैन सी इट, बीटी बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ द बैक्टीरिया, दिस प्रोड्यूसेस क्रिस्टल प्रोटीन, CRYSTAL, क्रिस्टल प्रोटीन,
एंड इट किल्स द सर्टेन इंसेक्ट्स। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है इट इज़ पॉइजनस और यू कैन से टॉक्सिक एंड इट किल्स द इंसेक्ट्स। बेसिकली टू ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स को ये किल करता है। वन इज नोन एज लेपिडोप्टेरियंस, और लेपिडोप्टेरियंस में इट इंक्लूड्स टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, दो तरह के आगे, एंड कोलियोप्टेरियंस बीटल्स आते हैं जिसमें, एंड डायप्टेरियंस जिसमें फ्लाइज एंड मस्कीटोज आते हैं। तो इन ग्रुप्स के इंसेक्ट्स को ये टारगेट करता है। तो बीटा थोराजेनेसिस फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल, एज आई टोल्ड यू, क्रिस्टल प्रोटीन या प्रोटीन क्रिस्टल एक ही चीज़ है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। जब भी वो ग्रो कर रहा है तो किसी लाइफ के स्टेज में बनता है। दीज क्रिस्टल्स हैव अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो जो क्रिस्टल बने ये पॉइजनस है, मैंने बताया आपको, टॉक्सिन्स हैं। तो ये क्या बनाते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। दैट मीन्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स मीन्स द प्रोटीन विच कैन किल द इंसेक्ट। एंड देर इज़ अ क्वेश्चन अराइज हेयर दैट वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। अब आप सोचोगे कि बैसिलस थ्यूराजेनेसिस की तो बॉडी में ये बन रहे हैं, ठीक है, इसकी बॉडी में तो बन रहे हैं यही क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, ये जीन है इसके अंदर जो क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा है, और ये जो है वो कैसा है? टॉक्सिक है, पॉइजनस है, ये वाला जो प्रोटीन इसके बॉडी में बना। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये जो प्रोटीन है ये इससे बैक्टीरिया क्यों नहीं किल हो जाता है ना? दिस क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? So the answer is that Bt toxin protein exists as inactive prototoxin. This Bt toxin जो क्रिस्टल प्रोटीन ये बन रहा है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है बैक्टीरियम के अंदर, एंड इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव form of toxin whenever it gets the alkaline pH of the intestine, which solubilize the crystals and it become activated. तो that means कि ये जब बैक्टीरिया के अंदर रहता है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो क्रिस्टल है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव फॉर्म, कोई भी जो इंसेक्ट है उसको जैसे ही इंसेक्ट ने खाया, क्योंकि बैक्टीरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इट इज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स, बट जब कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, खाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन में जाकर के एल्कलाइन पीएच उसको मिलेगा। यू ऑल नो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीएच आर इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, लाइक एसिडिक पीएच इन योर स्टमक ऑल्सो, एंड इंटेस्टाइन में आपका एल्कलाइन पीएच है। तो इंसेक्ट्स में भी ऐसी एल्कलाइन पीएच उसके गट में होता है। तो जहाँ वो जब जाता है तो ये क्रिस्टल जो है सोलबलाइज हो जाते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर एक्टिवेटेड, दैट मीन्स दिस प्रोटीन इज गेट एक्टिवेटेड, इट बाइंड टू द सर्फेस ऑफ एपिथीलियस मिडगट। तो अंदर जो एपिथीलियम है इंसेक्ट्स के उसकी मिडगट की, उसमें ये बाइंड कर जाते हैं एंड दे क्रिएट स्पोर्स। उसमें वो क्या कर देते हैं? पोर्स क्रिएट कर देते हैं, और जब पोर्स क्रिएट हो जाते हैं देन सेल स्वेल हो जाती है, उसमें वाटर फिल हो जाता है, वो लिसिस हो जाती है, मीन्स फट जाती, बर्स्ट हो जाती है, एंड इवेंचुअली जो इंसेक्ट्स है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इंसेक्ट्स के इंजेस्ट करते ही उसके इंटेस्टिनल वॉल को ये क्या कर देते हैं? परफोरेट, दैट मीन्स उनमें छेद हो जाते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है, मिडगट एपिथीलियम की वॉल है, और उसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट्स की। तो दैट मीन्स दिस टॉक्सिन ओनली एक्टिवेट इनटू द गट मीन्स इंटेस्टाइन ऑफ द इंसेक्ट्स ओनली, नॉट इन द बैक्टीरियम। तो दिस इज द सीक्रेट कि बैक्टीरियम के अंदर तो टॉक्सिन है लेकिन उससे नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हार्म किसको कर रहा है? इंसेक्ट्स का, विच आर गोइंग टू इंजेस्टेड। तो देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक क्रॉप, लाइक स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम Bacillus thuringiensis and inserted into the several crop plants. Like I have just given you example of this cotton plant. ये मैंने अभी आपको जो example दिया ये cotton plant का आपको दिया. In the diagram you can see the cotton plant. This is the cotton plant. You can see it here. And the choice of gene depends upon the crop and targeted पेस्ट, क्योंकि आप कौन सा जीन इंसर्ट करोगे वो डिपेंड करता है कौन से इंसेक्ट्स को आपको किल करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, एज आई टोल्ड यू इन दिस केस दैट वी आर गोइंग टू टारगेटेड इन दिस केस कोलियोप्टेरियंस, डायप्टेरियंस एंड लेपिडोप्टेरियंस। दीज आर द ग्रुप ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, उनको हमें किल करना था। तो अब हम यही जीन हर एक में नहीं डाल सकते। तो द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप, किस क्रॉप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एंड कौन सा उस पर लगने वाला पेस्ट जो है वो कौन सा है, इंसेक्ट कौन सा है। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को ही टारगेट करते हैं, हर किसी को किल नहीं करते, हर इंसेक्ट को किल नहीं करते हैं। एंड द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम क्राई। अब ये जो जीन है इट इज़ ऑल्सो रिटेन इन अ स्पेसिफिक मैनर like small c, small r और small y. तो this is written like this.
तो this gene is suppose cry1AC. So it is given it here also. Well, just a minute. You can see c small r small y 1. You can write like this, and also AC. And the toxin is coded by a gene cry. You always write small c small r small y. So there are number of them. For example, proteins encoded by the genes cry1AC, like this I have written. Then again there is cry cry 2AB, which controls the cotton bollworms. Then cry1AB, which controls the corn borer, cry1AB, it controls the corn borer. So it is different from the different kind of insects कि कौन से insects को हमें उसे kill करना है. And this question is also important, that why we write CRY. This is for the gene, and if it is written in capital, it is for the protein. So sometimes you can see is written like that, cry, that this is for the protein, and if it is written in the small letter, that means it is about the gene, that is cry gene, that means crystal. Cry means crystal, इसलिए हम उसको लिखते हैं CRY, because it is a full form of short form of crystal, 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 and here we can write it cry. So this is the cry gene. So this is all about it. In next chapter we will discuss pest resistant in plant, and there is a diagram given in your book. It is the diagram where you can see that cotton ball is there. It is destroyed by the bollworms. Bollworms are the insects which can cut it. तो जब ये cut कर देते हैं सारा बीज से, तो it is difficult from farmers to get the proper cotton, and they are not able to make the thread and all that things which are going to prepare it, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इनको कट कर देते हैं. तो फॉर प्रोटेक्ट, यहाँ इस वाले डायग्राम में यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस इज द इन बड कंडीशन, एंड हेयर इज द इंसेक्ट्स विच इज़ गोइंग टू फॉर्म अ बोर. एक छेद सा बना देते हैं, अंदर घुस जाते हैं इंसेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सारा अंदर से कॉटन को कट कर देते हैं. तो फिर कॉटन से तो आपको पता है थ्रेड वगैरह निकालते हैं, तो जब वो पीसेज में टूट जाएगा तो फिर उससे नहीं निकल सकता ना थ्रेड. So that is why it is important to control these bollworms, so that your cotton crop will be you will get the proper cotton crop. So that's why we can use all these kinds of बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो भी है एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.